بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 جولائی سن 2025 ہے۔ میں آغا وقار احمد اپنے پروگرام حرف ممنوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میرے ایک دوست کا اسلام آباد سے مجھے فون آیا، اس نے ایک سوال کیا۔ میں نے کہا اس کا جواب ایک قسط میں تو نہیں میں دے سکتا، کوشش کروں گا کہ 2 یا 3 ولاگ مختلف کر کے آپ کو دوں۔ تو چونکہ آج 5 جولائی ہے اور بہت اہم دن ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ عاشوراء محرم بھی ہے۔ آج 9 محرم ہے۔ 9 محرم اور احرام پہ میں اتنی ڈیٹیل سے اسٹڈی نہیں کر سکا، لیکن پھر بھی آصف بٹ صاحب آپ کے سوال کا جواب آپ کی نظر میں کروں گا۔ جب پاکستان بنا تو اس کی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا۔ ابھی قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل نہیں ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ ایک فوجی آ کے کھڑا ہو گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ آپ کا اسمبلی میں کیا کام ہے، جائیں آپ اپنا کام کریں، آپ کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ ہے فوج کا کردار۔ آصف صاحب آپ کا سوال تھا کہ پاکستان کی سیاست میں پاک فوج کی مداخلت، بالکل میں ایک ایک لمحہ بتانے کی کوشش کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ جب پاک فوج نے فیصلہ کر لیا کہ وہ پولیٹیکل ہو جائے گی، تو پھر کس کس سیاستدان نے اس کو مجبور نہیں کیا کہ نہیں جی آئیں اور آپ سیاست میں حصہ لیں۔ اور آج بھی ایک سیاستدان جس کے پیچھے پاکستان کی سب سے زیادہ قومی پار، عوامی پار ہے، وہ پاور جو عوام کی اسٹریٹ پاور کہلاتی ہے، وہ اس سیاستدان کے ساتھ ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کو اس کی پارٹی کا نشان نہیں منتخب ہوا، تو پھر اس کے باوجود بھی اس کے ووٹر باہر آئے اور انہوں نے ووٹ ڈالا، لیکن وہ مسلسل دعوت دے رہا ہے کہ میں اسمبلی میں موجود افراد کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں کروں گا، میں نے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ملاقات کرنی ہے، ڈیل کرنی ہے اور معاملات طے کرنے ہیں۔ تو یہ تو کیا جی ہمارے سیاستدان خود فوج کو دعوت دیتے ہیں۔ لیکن میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں۔ جب محمد علی جناح نے پہلی دفعہ میجر جنرل ایوب خان کو دیکھا تو انہوں نے اپنے سیکرٹری کو کہا یہ بندہ بڑا خطرناک ہے، اس کو کبھی قومی راز مت دینا۔ اور وہی میجر جنرل ایوب جو تھا نا، بعد میں 1958 کو بغاوت کر کے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنا۔ 1959 کو اس نے اپنے آپ کو خود جو ہے فیلڈ مارشل کا خطاب دیا، اور 1962 میں اس نے فاطمہ جناح کو فراڈ دھوکہ دہی کے ساتھ شکست دی۔ تو یہ تو لمبی سٹوری ہے، لیکن آج 5 جولائی ہے۔ آج وہ دن ہے جس دن ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت کا حکم ہونے سے پہلے اس کی حکومت کا تختہ الٹا گیا۔ 5 جولائی کو تختہ الٹا گیا۔ کس جنرل نے الٹا؟ بڑی مزیدار بات ہے۔ اگر میں جنرل نہ کہوں اور سیدھا ضیاء الحق کہہ دوں تو آپ اس کے اوپر پریشان نہ ہوئیے گا۔ ایک تقریب تھی، ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ میں سے کچھ چھلک ٹھک کر گرا، کچھ کہتے ہیں چائے کے قطرے تھے، وہ مسٹر ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر آف پاکستان کے بوٹ پہ پڑ گئے۔ تو یہی اس وقت کا کور کمانڈر ضیاء الحق جلدی سے اس نے اپنی جیب میں سے رومال نکالا اور ذوالفقار علی بھٹو کا ایک بوٹ صاف کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنا دوسرا پاؤں بھی آگے کر دیا، اس نے دوسرا بوٹ بھی صاف کیا۔ یہ ڈاکٹر مبشر سر نے پوری ڈیٹیل دی مشہور صحافی افتخار احمد کے ساتھ انٹرویو میں۔ یہ ہے ہمارے پاک فوج کے اس وقت کے جنرلز کی کچھ
खूबियाँ जिन वजह से वो कोर कमांडर से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हुए। वक्त गुजरता गया, भट्टो का तख्ता उल्टा जा चुका था और पंजाब असेंबली की छत के ऊपर वाले आखिरी फ्लोर के ऊपर चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का ऑफिस था। जुल्फ़िकार अली भट्टो को जब एक दिन 1.5 दिन की जमानत मिली तो वो शक्कर गए। जब वापस आए तो लाहौर की हर सड़क एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। और उसके बाद नुसरत भट्टो ने एक जलसा गोल बाग में रखा, जिसे आप नासिर बाग के नाम से जानते हैं। बड़ी परेशानी हुई जी उनको, जिन्होंने भट्टो के खिलाफ साजिश की थी। तो उसमें हमारे एक बड़े, बल्कि एक बड़े क्या 3-4 साफ़ी हजरात मुलव्वस थे। खैर ये हजूम देखा, उधर ज़ियाउल हक इलेक्शन की डेट दे चुका था। जब भट्टो की आमद, भट्टो और नुसरत भट्टो का जलसा देखा तो उन्होंने कहा ये तो हम कामयाब नहीं होंगे। ज़िया को कि इलेक्शन लेट करे। ज़िया ने कहा नहीं मैंने तो तारीख दे दी है। तो मजीद निज़ामी जो चीफ एडिटर नवाए वक्त थे मरहूम, और आज ज़िंदा सेहतमंद मुजीबुर रहमान शामी, और उसके साथ एक साहब और थे सादक। इन तीनों साफ़ियों ने जब एमएलए को कहा कि भी हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन लेट हो, उन्होंने कहा इलेक्शन लेट होगा तो आप क्या कर लेंगे जी? उन्होंने कहा जी सहाफ़ी जो होते हैं ना वो अपने कालमों से और ख़बरों से लोगों की सोच बदलते हैं, उनको स्लो पॉइजन करते हैं। तो इस तरह हम आवाम की सोच को बदल देंगे, ज़ेन साजी करेंगे, हमें टाइम चाहिए। और फिर मुजीब निज़ामी साहब ने मुजीबुर रहमान शामी की ड्यूटी लगाई कि जाओ जाके इस्लामाबाद में मिलो ज़िया को, और उसको को कौम से झूठ बोलता रहे, कलमे पढ़ पढ़ के बोलता रहे, और अपनी महबूबा जो मबीना तौर पे यहूदन थी उसके साथ रंग रलिया मिलाता रहे और लोगों के सामने अमीरुल मोमिनीन बना रहे। खैर ये कौम के साथ मजाक होता गया। आसिफ साहब आपका सवाल था कि फ़ौज की मुदाखलत, यहाँ पे आप गौर से देखें। कौम को हर 15 दिन महीने के बाद तकरीर करके कह रहा है कि इलेक्शन इंशाल्लाह फलां तरीक को होगा, 2-4 कुरानी आयात भी पढ़ लेनी। लेकिन पहले से तयशुदा था कि इसको लेट करना है, इतना लेट करना है, इतना लेट करना है कि भट्टो को सज़ाए मौत भी दे दें हम, और अवाम की ज़ेन साजी सहाफ़ी हजरात मिल के करें। तो मुल्क की तबाही में एक बड़ा हिस्सा फ़ौज के बाद सहाफ़ी हजरात का हुआ। मैं एक सहाफ़ी होने की हैसियत से इस बात को कबूल करता हूँ कि एक सहाफ़ी होने की हैसियत से ये एक मुजरमाना गफलत नहीं, एक्ट था, ये शरीक से। और भाई फिर जुल्फ़िकार अली भट्टो को 4 अप्रैल को सज़ाए मौत दे दी गई। 4 अप्रैल 1979 को जब सज़ाए मौत दे दी गई तो फिर अवाम का प्रोटेस्ट हुआ। उस दरमियान जो वर्कर थे उनको जब सज़ाए मौत देने का सिलसिला शुरू हुआ तो मच जेल में तकरीबन 95-96 अफराद को सज़ाए मौत दी गई। और जब कोड़ों की बारिश हो रही थी तो 20,000 वर्करों को गिरफ़्तार किया गया, और उनके में कुछ सहाफ़ी भी शामिल थे जो आज भी ज़िंदा है। अगली किस्त में उनका नाम लूँगा। कोड़े मारे गए, सैकड़ों वर्करों को कोड़े मारे गए, सैकड़ों वर्करों को कोड़े मारे गए। लेकिन जब उनके ऊपर कोड़ा लगता था तो जे भट्टो की आवाज़ निकलती थी। उस ज़ेन साजी जिन साफ़ियों ने करनी थी वो मुकम्मल तौर पे ज़ेन साजी नहीं कर सके, और आज भी जियालों की नज़र में जुल्फ़िकार अली भट्टो ज़िंदा है। हुआ ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जब उसके बाद 2 दफ़ा हुकूमत आई
तो वो जैनों का ख्याल नहीं रख सकी, जिस वजह से जैन नाराज हुए और उन जैनों के बच्चों ने आके पीटीआई ज्वाइन की। अब ये एक एक्ट है। इसके बाद इस पीटीआई को हुकूमत में लाने के लिए पाक फौज की जो मुदाखलत है वो 20 साल की मेहनत है। एक एक का नाम लूँगा, एक एक को बताऊँगा कि किसने क्या काम किया। एनीवे, एक बंदे को ट्रेन करके तीसरी ताकत बना के ले आया गया और तीसरी ताकत ने पाकिस्तान को बुरी तरह नाकाम किया। MRD की मूवमेंट जब भट्टो की सजा मौत के बाद चली तो 189 अफराद को गोलियां लगी और वो हलाक हुए और 200 प्लस शदीद जख्मी हुए। अवाम में सियासी शऊर है। अगर MRD की तारीख चल सकती है तो पाकिस्तान में हर किस्म की सियासी एक्टिविटी हो सकती है। वर्कर जो है ना, वर्कर, उसको लीडर चाहिए और इस वक्त वर्कर एक्टिव है और लीडर किसी और के लिए काम कर रहा है। आखिरी आज की बात बड़ा मज़ेदार चुटकुला करके छोड़ता हूँ और इसको सुनिएगा। ये 4 किस्तें मुझे इस मसले पे करनी पड़ेगी। आसिफ भट्ट साहब, आपके लिए 4 किस्तें करूँगा, शायद दूसरे लोगों को पसंद ना आए। बड़ी मज़ेदार बात है कि इमरान खान की बहन नौरीन का बेटा हसन न्याजी, सज़ा 10 साल। उसके राइट साइड पे खड़ा अलीमा खान का बेटा, कोई मुकदमा नहीं। तो ये अलीमा न्याजी किसके लिए काम कर रही है? इसके पीछे कौन सी गैर मुल्की ताकत है ये, और इसकी भावज जमामा के दरमियान क्या कॉन्ट्रैक्ट है, और उस कॉन्ट्रैक्ट को भी आवाम के सामने नुमाया करना बड़ा ज़रूरी है। देखो, जो मासूम वर्कर इस्तेमाल हुए, यास्मीन राशिद सबसे अहम है। उसके बाद आप देख लें शाह महमूद कुरैशी कैद में है, इजाज़ चौधरी कैद में है, महमूद रशीद कैद में है, और उमर चीमा जो इमरान खान का सबसे पुराना साथी वो भी कैद में है। उनको किसी ने पूछा, या जो 35,000 वर्कर गिरफ्तार हुए थे उसके लिए पीटीआई ने किसी किस्म की कोई वकालत की नज़र में कोई 4 मुफ्त के वकील करवा के दिए? बिल्कुल नहीं। और ये सियासतदान कुरैशी साहब कहते रहे, शाह महमूद कुरैशी साहब के, भाई हमें भी जो आप निगोसिएशन कर रहे हैं इसका हिस्सा बनाएं, शायद हम आपके लिए फ़ायदामंद हो। लेकिन वहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ सियासत सिर्फ एक शख्स की, जो कहता है कि मैंने सिविलियन अफराद से तो बात ही नहीं करनी। फौजी मुदाखलत कह रहे हैं ना आसिफ साहब आप, तो यहाँ पे तो सियासतदान खुद दावत देते हैं, आए हम हमारे में मुदाखलत करें। मुझे याद है कि चंद माह पहले एक जगह पे सहाफ़ियों का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो इस वक्त फील्ड मास्टर हैं जनाब आसिम मनीर साहब से एक सवाल जवाब हुआ, तो उन्होंने कहा, देखे जी, एक सहाफ़ी ने कहा कि 3 खत लिखे हैं और आप उसके मतलब क्या सोच रहे हैं? उसने कहा, जी मुझे कोई ख़त वसूल नहीं हुआ, मैं उसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अगर मेरे पास वो खतूत आएंगे तो मैं जो सियासी तरीक़ाकार है मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भेजूँगा। ये उसका काम है, ये मेरा काम नहीं है। पाक फ़ौज को ज़बरदस्ती सियासत में मत लाएं। हमारा काम दुश्मनों के दांत खट्टे करना है। और फिर आसिम मनीर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो इस वक्त फील्ड मास्टर हैं, उन्होंने साबित कर दिया, उन्होंने भारत को बुरी तरह शिकस्त दी और दुनिया भर में अपने सफारती तल्लुकात बहाल किए, और दुनिया कहती है पाक फ़ौज के मुकाबले की फ़ौज नहीं। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए दुआ कर दीजिएगा कि आज 9 मुहर्रम है
اور کل 10 محرم ہوگی تو میں کوشش کروں گا اس کا کچھ حصہ کل بھی میں ریکارڈ کرواؤں. شکریہ.